Thank you so much for listening to the video patiently. Swamiji has joined in, so he will answer your question. I think the first step was not clear, Karanyasa, to a few people. So, Over to Madam, is it possible to repeat all the steps, please? you'll get the video, don't worry. Because we are not able to memorize all the steps. You don't have at to. once. We have ensured that you'll be able to see the video any number of times because the video will be shared with you. So don't worry about repeating it. You can repeat it any number of times. First of all, you have multi-layered or multi-tier support. You can avail those supports, like you can always ask a question in the group. There will be a practice session on Thursday. So on that practice session, the mentors will be teaching you or revising the whole thing. So you can ask questions there, revise the whole thing again. There are multi-tier support. You just avail that support. We understand and we don't want that you remember everything on a single day, on the first day itself. So Karanyasa happens with hand. Kara means hand. Karanyasa means establishing your hand. Now, I can go on. Mute yourself. स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. हाँ, अपने आप को म्यूट में रखिए, फिर आप सुन पाएंगे ठीक से. Karanyasa means establishing the hand. Hand, if I go on exploring aspects of hand, it will take many days and maybe months. But fundamentally, what you need to understand, your action in the world happens through your hand. Basically, your karma is your hand. Your hand also has points which actually correlate with every organ of your body. It is like, in earlier days, there used to be a doll, Russian doll. If you take off the head, there is another doll, small doll in it. In that, there is another small doll. Similarly, your body is made in that manner, where your simple one finger has everything that your body has. Just by using one finger, you can touch every aspect of your life. With your hand, you can touch every aspect of your life. With your body, you can touch every aspect of your life. And you can go subtle. So we have already said there are Ashtasharira, 8 levels of your physical body. But even your finger has everything. So Karanyasa, establishing the finger. Shiatsu, or what you call as marma therapy. They use marma therapy went out and it became shiatsu or acupressure, what you know as acupressure. And one of the form of acupressure is acupuncture, where you use a certain trigger, an electric impulse or a trigger. Now it has actually been developed from the marma aspect of your body. Your hand has all the marmas and which are integrated with the organs and functioning of your body. So establishing the hand or Karanyasa is an important aspect. That is why we are saying start with Karanyasa. It's a simple method. The key to the method, again, as I have said, one, you have to hold your breath, inhale, hold, and exhale. One key is hold. Another key is, because you are in Vata Paksha, the whole focus should be at your Mooladhara. And whenever you hold, you gently tense your body towards Mooladhara. This you should remember. Now you start with your thumb. Now what you have to do is rub the thumb with the index finger. You have to rub the thumb with the index finger as you inhale. So as you inhale, rub the index finger on the thumb and finish your inhalation. Make it like an O. Other fingers together. Hold. Now here, when you hold, you keep it on your knees. You do your Anganyasa, keeping your hand on your knees.
So when you hold, you gently tense your body towards the Muladhara. Hold as long as you are comfortable, and then you exhale very, very slowly. Exhalation should be very slow. Inhalation can be a little fast and full, has to be full. Exhalation has to be very, very slow. So inhale, hold, tense your body towards Muladhara, hold as long as you are comfortable, and then exhale. Then you can relax. You do it with thumb, then index finger, तर्जनी पे आ जाइए, अंगूठे से अपनी तर्जनी को रब करेंगे सांस भरते हुए, रोकेंगे यहां पे, अपने शरीर को टाइट करेंगे मूलाधार की तरफ में और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे. मध्यमा, मिडिल फिंगर, सिमिलर मैनर. अनामिका, रिंग फिंगर. कनिष्ठा, स्मॉल फिंगर. 5 steps and finish. तो ये करन्यास है. Now one by one we'll be taking questions. देखिए आपके जितने भी सवाल है ना, आपको मालूम हम सवाल का जवाब तो दे देंगे, पर आपको आराम नहीं मिलने वाला. We will answer your questions, but you'll not be benefited. You'll not get benefit through the answer. This you must remember. You must work upon your body or do the practices in order to get relief. There is no other way. There is no other option. Practice आपको करना ही पड़ेगा. Now I am not able to do it properly. It doesn't matter. आप जितना कर सकते हैं करिए, जो नहीं कर सकते हैं skip it. आगे चले जाओ. You must practice. Practice will get you out of your problem, not the answers, but yes, one by one we can take up the questions. रचना कोऑर्डिनेट कीजिए. हाँ जी. Any questions from anybody? Swamiji can answer whatever question you have. Just one by one, One by one, please. नहीं, आप नाम बोल दो ना, आप नाम बोल दो उनको, वो क्वेश्चन फिर पूछ लेंगे. अच्छा अच्छा, तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, फिर हम. Kapil sir wants to ask the question. You can ask. Kapil sir. Swamiji, when your fingertip moves to the thumb, top of the thumb, in inhalation, when you're exhaling, does the fingertip come down to the base of the thumb? No, it will not come down. You just exhale and then relax. Exhale and relax. It will not come down. नीचे नहीं लेके आना. Exhalation has to happen very, very slowly. This you remember. And then you mentioned that you have to use your middle finger, ring finger, and little finger also. When do you do that? After the thumb, first thumb, then index finger, middle finger, ring finger, small finger. 5 steps. एक बारी करना है ना सब. एक बारी करना है ना. इनहेल किया, रोका, एक्सहेल किया, रिलैक्स, फिर इनहेल किया, रोका, एक्सहेल किया, रिलैक्स, फिर इनहेल किया, रोका, एक्सहेल किया, रिलैक्स, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर. That's it. Okay, Mahantesh sir, you can ask your question. Swamiji, after practice, when I start my practice, after that, actually the problem was in my left knee. It was actually, the gap has been reduced drastically. Swamiji, can you hear me? हाँ, बोलिए. Please go ahead. Please unmute yourself, Mahantesh sir. Yes. Am I audible? Yes, sir? Go ahead. Actually, sir, Swamiji, what happened in my left knee? The gap has been reduced drastically. So because of that, my movement of the left leg is bit most of the time it is going to restricted. Okay. And sir, when I started this kriyas, so the pain is radiating surrounding this around this knee, sir. Yes. What happens? Why left knee is degenerating more than the right knee? Why one part of many people must have faced this. One part of the body is degenerating more.
or disaligned. This disalignment, which creates more degeneration in one part of the body, the disalignment needs to be aligned back. You need to align the body, only then what will happen, the degenerative aspect, which is like a part and parcel of your life, it will get distributed. Apart from that, if you increase the regeneration factor, then what will happen? It will get into balance. Initially, whatever part is weak, if you move your body or do some work, that part which is weak will get impacted more. So it will show some kind of a sign like pain. So pain, everybody must remember. And in fact, कहते हैं गांठ बांध लीजिए इस बात को. Pain happens because of inflammation. Inflammation happens because of inertia or movement. Movement की वजह से inflammation आता है, inflammation से pain आता है. Now, another aspect of pain is if your digestive system is not proper, that means your liver is not functioning well, your digestion is not happening well, your excretion is not happening. अगर आपको constipation है, gas बन रही है, तो it will create inflammation across the body. पूरे शरीर में inflammation होगा, and the part which has got impacted more or which is weak will get more pain. So क्या करना है? The pain can be handled through two ways. Is there an option for not moving your body? No, there is not an option. That is not an option. You will have to use your body or move your body in a particular manner to get the alignment back to do regeneration. Regeneration happens because of your movement. And the second factor which causes regeneration is your kumbhak. How? एक example दे रहा हूं. I'm giving you an example. Take a 2-liter water bottle. 2 liter का water bottle. Every day lift from your right hand 100 times. 100 बार उसको उठाइए. In 10 days time, you'll see your right hand will develop more muscles. Yes or no? It will become more strong. होता है ना? So what happened? You regenerated your right hand. There was more regeneration on the right hand. One thing was weight and movement. But how did you lift that bottle? Behind, you were holding your breath. So whenever you lift anything, you hold your breath. So kumbhak, you do kumbhak for regeneration, but you don't know, but you don't observe. What you observe is always, your senses are always directed outside. That is why what is happening behind we usually do not observe. So we are consciously doing kumbhak for regeneration, right? So regeneration factor will increase. Unless until you move your body in a particular manner, alignment will not happen. 3 types of alignment for your body. We have ensured that the course has all the 3 alignments. Nabhi, Kaudi, Nale on the physical level. On subtle level, there are 3 things that we are trying to achieve: strength, balance, and rhythm. So these 3 things are inbuilt in the whole program, through the program. Whatever module you are learning, these are all inbuilt in those modules. So there is nothing in the module which you will find which is like not in your practice and you find somewhere else. There is nothing like that. Everything that can help your body is included in your practices on all the 8 levels. So regeneration, we are doing. Inflammation, you will have to take care. Now, how to take care of the inflammation? So if you have pain on any part of the body, suppose one joint, if you put a wet cloth on that joint for some time, you'll see the inflammation comes down. If you hydrate your system properly, the inflammation will come down. If you detox your system or take care that constipation is not there, the inflammation will come down. If you can improve the gut microbiome, your inflammation will come down. If you help your liver, your inflammation will come down. Now, how to do all these things? As a support, see, you'll learn
Kumbhak therapy, there are three things that you will be learning. The first is Anganyasa, the second one is Hatha Vinyasa, the third one is Kumbhak therapy. Kumbhak therapy has three practices rather. Prakriti Shul, Kaka Khechiri, and Shula Raja. All three reduces inflammation. So we have things in our practices which reduces your inflammation. You can also take an external support. We'll be sharing some video with you. Initially, see, everything else that you will take is an external support. It is not a cure. Every medicine that you take is not a cure. No medicine cures you. Nothing in terms of your diet will be able to cure you. It will be able to support you a little. It can reduce your inflammation. So in terms of support, we'll share a video which describes something called as Arishta, which reduces internal inflammation, and there is an oil which reduces external inflammation. If you have pain, if you just apply that oil a little in that region, the pain will immediately go off. And if it is very stiff, if there is a stiff shoulder, if you apply that oil, the stiffness will go away. It's a very wonderful product, but those things will not cure you. So it is a little support initially. When you are moving your body, and because of the movement, you are getting inflammation or pain, then at that time you can apply a little oil, or you can get any kind of pain oil from the market. Don't put anything chemical on your body. If that is natural, you can always use that natural stuff, but not chemical. So pain oil and Arishta is for liver and the digestive system. It helps strengthening the liver, and it actually reestablishes your gut microbiome. Internal inflammation, the moment internal inflammation goes off, you'll see your pain factor reduces drastically. So initially at this point of time, you can take a little support, do your practices gently, don't wrestle with your body, आराम से करेंगे, do it enjoy करते कीजिए, आपको problem कम आएगा. Okay, Pavan sir wants to ask a question. Pavan sir, you can ask your question. Yeah. प्रणाम स्वामी जी. प्रणाम जी, बोलिए. मेरा जो स्वामी जी 10 साल से मेरा कोई नर्व कंप्रेस हुआ है 667 के अंदर, तो मैं उसके लिए मेडिसिन भी लेता हूँ. तो अभी डॉक्टर ने मुझे कहा आप इमीडिएट ऑपरेशन करा लो, नहीं तो आपको हो सकता है कि इमीडिएट कुछ प्रॉब्लम आ जाए, पैरालिसिस वगैरह हो सकता है. नर्व कंप्रेशन से पैरालिसिस नहीं होता, लेकिन पैरालिसिस अगर तभी होगा जब आपके ब्रेन में कोई क्लॉट आ जाए या रुकावट आ जाए. पहली बात तो ये, ठीक है. नर्व कंप्रेशन से आपको टिंगलिंग सेंसेशन होगा, ड्रॉप फुट हो सकता है, या कंट्रोल नहीं होगा अपने मोटर एबिलिटीज पे, बट पैरालिसिस नहीं होता. दूसरी चीज, हड्डी के बीच में कुछ फंस गई. हाँ, वही है ना, हड्डी के बीच में कुछ फंस गई, तो क्या करेंगे? दवाई खा के तो वो निकलेगी नहीं निकलेगी. तो क्या करेंगे? ऊपर से अगर नीचे से आपकी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा खींच दिया जाए और बाकी अपने लिम्स को अगर स्ट्रेच कर दिया जाए, तो नर्व निकल जाता. वो नर्व जो है, जो फंसा हुआ, वो निकल जाएगा. ये इतना ही आसान है, लेकिन किया कैसे जाए? हाउ टू डू इट? इसको किया कैसे जाए? इसीलिए आपको हठ विन्यास में हम कुछ चीजें सिखाएंगे जिसमें कि ये होता है. अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं. आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं ना, छोटा मूवमेंट भी कर सकते हैं और बड़ा मूवमेंट भी कर सकते हैं. ये दो चीज कर सकते हैं. छोटा मूवमेंट कर सकते हैं, बड़ा मूवमेंट कर सकते हैं. तो जो छोटा मूवमेंट होता है वो आपके बॉडी में किसी एक जगह पे इंपैक्ट करता है, लोकलाइज्ड इंपैक्ट करता है. लेकिन अगर बड़ा मूवमेंट करते हैं तो वो पूरे शरीर को इंपैक्ट करता है. तो आप देखेंगे हठ विन्यास में आपको बड़ा मूवमेंट करवाया जा रहा है, और 3 चीजें आपको दी जाएंगी अलाइनमेंट के लिए.
ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी को कैसे अलाइन करना है, उसको कैसे स्ट्रेच करना, उसके लिए प्रोसेस दिए जाएंगे। हाँ, समर्पण हठ कुंभक है वो पूरा स्पाइन के लिए ही है, ठीक है ना, ग्रंथि भेद करके है वो स्पाइन के लिए ही है। तो वो चीजें इसके अंदर हैं। पहली चीज के दवाई खा के ये चीज नर्व कंप्रेशन निकलेगा। दूसरी चीज कि जब आप इस पे मूवमेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से तो कंप्रेशन निकल जाएगा। तीसरी चीज, अभी शरीर कमजोर है इसीलिए ये नसें फंस रही हैं। आपको मालूम है जिनका शरीर कमजोर हो जाता है उनके काफ मसल टाइट हो जाते हैं, ऐसे बहुत टाइट हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। कभी आपने देखा किसी को, उसके जो पांव की पिंडलियां हैं ना वो टाइट हो जाती हैं, लॉक हो जाती है, फिर वो पांव को धीरे धीरे इधर उधर करेंगे तब जाके वो लूज होता है। होता है होता है ना, होता है। ये कई लोगों को होता है, उन्होंने देखा होगा लाइफ में, कभी ना कभी किसी ना किसी को हुआ होगा जरूर। तो ये होता क्यों कब है, अगर आप याद करें, जब आप का शरीर थोड़ा कमजोर होता है ना तब ये ज्यादा बागी लगना कहते हैं, कुछ जगह पे इंडिया में इसको बागी लग जाती है। तो वो जब आपका शरीर ज्यादा कमजोर होता है ना तो ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो नर्व कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, पहले चीज आपके शरीर में कमजोरी है। दूसरा एस्पेक्ट, जैसे ही आपका शरीर कमजोर होता है इसकी एक वायु कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, इसे कहते हैं व्यान वायु। ये व्यान वायु आपके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो नसों का कुछ टेंशन होना चाहिए ना आपके शरीर में। जैसे ही शरीर कमजोर होता है, व्यान कमजोर होता है, नसें जो है उसका टेंशन बरकरार नहीं रख सकता शरीर, तब वो लूज होती हैं, उस समय उनका कहीं कंप्रेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये पूरे शरीर की कमजोरी की भी निशानी है। तो आपको अपने पूरे बॉडी को रिजुवनेट भी करना पड़ेगा इसके लिए। नर्व अगर निकल भी गई तो वापस फंस जाएगी, है कि नहीं। अगर आपने इसको खींच खाच के निकाल दिया, आपको मालूम है अगर गलत करवट्स होते हैं या गलत तकिया लेके अलग तरीके से सोने से पीछे नस खींच जाती है या कहीं लिपट फंस जाती है, और ऐसा कई लोगों को फ्रीक्वेंटली होता है, फ्रीक्वेंटली होता है। इसका मतलब आप वो ठीक भी हो जाएगा तो वापस होने की संभावना भी होती है। वो तो इलाज नहीं हुआ ना, एक बार आपने अगर ऑपरेट करके भी निकाल दिया तो आपके शरीर को तो स्ट्रांग नहीं किया आपने, वो तो कहीं और हो जाएगा, वो तो कहीं और स्लिप डिस्क हो जाएगा, वो तो कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी। कितने बार पूरे शरीर का ऑपरेशन कितने बार कराएंगे। तो मूलभूत तरीके से फंडामेंटली यू विल हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर सिस्टम। द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। दवाई खा के नहीं बढ़ेगा, अच्छा भोजन करके ये नहीं बढ़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें हेल्प होता है, बट वो भी फंडामेंटली नहीं बढ़ाते, वो भी आपके ऑर्गन को तो स्ट्रांग नहीं करते, है ना। स्पोर्ट्स के लोगों को भी डायबिटीज होती है, हार्ट अटैक हो जाता है पहलवानों को, 40 साल की उम्र में खत्म हो जाते हैं। तो आपको ऑर्गन को तो स्ट्रेंथ देना ही पड़ेगा। अब यही अष्टांग चिकित्सा में ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पहले तो ये 9 हफ्ते सीखने के हैं। In these 9 weeks, you learn the whole module. Then it will be customized according to you, according to your system. And thereafter, your practice actually starts. तो थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा सपोर्ट आप जो है, अगर पेन फैक्टर्स हैं आपके, डाइजेशन में डिफिकल्टी है, तो कॉन्स्टिपेशन है, इसके लिए हम बताएंगे आपको, उस समय सपोर्ट ले सकते हैं, बट सपोर्ट लेने से आप ठीक नहीं हो जाएंगे। टेम्परेरी रिलीफ हो जाएगा तो हम आपको परमानेंट रिलीफ देना चाहते हैं। Usha Bhasin ma'am wants to ask a question. Usha Bhasin ma'am, please ask your question. नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। मेरे सवाल तो बहुत से हैं, बट मैं नहीं चाहूंगी और उनको डिस्टर्ब करना और उनके टाइम पे एनक्रोच अपॉन करना। सो मेरी इमीडिएट समस्या, मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं, और कुल मिलाकर ये है कि 2009 में मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मुझे सिर में चोट लगी थी, पर सारा मेरा टेस्ट वगैरह ठीक है।
अभी इमीडिएट प्रॉब्लम, मैं बड़ी ईमानदारी से सिंसियरली ये सब कर रही हूँ, जो आपकी क्रियाएं हैं, और कुंभक और सब कुछ कर रही हूँ, घी भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मुझे इस नींद की बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे नींद नहीं आती। और अब मैंने देखा है कि जैसे थोड़ा थोड़ा मेरा लेफ्ट साइड शायद ज्यादा वीक है, हालांकि मुझे लगता था मेरे राइट साइड पे चोट ज्यादा है, उसमें पाँव में बचपन की भी एक चोट है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा लेफ्ट साइड बहुत वीक है, जो कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह ने भी बताया था और मैंने एक्सपीरियंस किया। तो आई थिंक मेरी चंद्र नाड़ी इज नॉट बॉडी हीटेड हो जाती है। सो स्वामी जी, मैं क्या करूं? मुझे अब थोड़ी थोड़ी नींद की ड्राउजीनेस आने भी लगती है, तो वो पेन कहीं ना कहीं हो जाता है, तो फिर वो नींद चली जाती है। विद द रिजल्ट आई ट्राई अ लॉट, अनुलोम विलोम में कई कर रही हूँ और वो सब करती हूँ, उससे मदद होती है, पर जरा सा भी मेरा कुछ सिस्टम इधर से उधर हो जाता है, तो देन आई हैव टू टेक अ पिल, which I am not very happy obviously about. So please बताएं कि मैं क्या करूं? पहली चीज, आप ऐसा मान के चलिए कि आप गाड़ी का इंजन होता है ना, उसको फाइन ट्यून किया जाता है एक तरीके से। जी जी जी। अगर उसको उसकी ट्यूनिंग खराब हो जाए कहीं से भी, तो उसमें कभी कभी हम बात करते हैं ना कि एक बार मैकेनिक के पास गई गाड़ी तो फिर तो जाती रहती है। I agree. तो उसकी अगर ट्यूनिंग बिगड़ जाए तो आप कुछ भी करें उसके ऊपर, वो बीच बीच में प्रॉब्लम देता ही रहेगा। ऐसा ही हमारा शरीर भी होता है, इसकी एक ट्यूनिंग है जी। इसकी एक ट्यूनिंग है, और वो ट्यूनिंग किसी वजह से भी बिगड़ सकती है। एक्सीडेंट से बिगड़ सकती है वो ट्यूनिंग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, अगर कोई इमोशनल इम्पैक्ट आपके लाइफ में आया उसकी वजह से भी बिगड़ सकती है, मेंटल इम्पैक्ट की वजह से भी बिगड़ सकती है। तो और भी लेवल्स हैं उसके बिगड़ने के, मगर अभी सिंपल तरीके से मैंने बताया, उसकी ट्यूनिंग बिगड़ जाए तो उसमें आराम नहीं रहता, वो बिल्कुल ईज में नहीं रहती, उसकी ट्यूनिंग वापस करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज तो क्या है कि क्विक फिक्स आप इस वक्त में करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां भी आप देखेंगे वो क्विक फिक्स ही हो रहा है। आप एक पिल ले लेते हो, थोड़ा सा दर्द खत्म हो जाता है, मगर क्या होता है, आपने शरीर को और कमजोर कर दिया। तो पहली बात हमने शरीर की फर्टिलिटी तो वैसे ही कम कर रखी है ना। जमीन में खाद डालते हैं तो जमीन की फर्टिलिटी कमजोर हो जाती है कि नहीं? फिर आजकल कहते हैं ऑर्गेनिक खेती करो, भाई केमिकल मत डालो, मगर केमिकल नहीं डालें तो कैसे कैसे खेती करें? तो लेकिन कुछ डालना पड़ेगा उस टाइम पे, कुछ उसको स्ट्रांग बनाने के लिए कोई जैविक खाद डालना पड़ेगा, कोई अमृत मिट्टी बनानी पड़ेगी उसकी, तब जाके होगा। एक बेवड़े को, एक दारूबाज जो है, ड्रंकर्ड है, उसको आप दारू छुड़ा दो, उसकी एक दिन छीन लो उसकी बोतल, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। हमारी हालत यही है, बिना, अब दारू की जगह पे एक गोली है, फर्क तो इतना ही है कि ग्लास नहीं है तो गोली है, गोली नहीं है तो ग्लास है। तो हम सारे के सारे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट तो हो गए हैं किसी ना किसी और चीज के ऊपर, जो कि हमारे शरीर को और ही कमजोर करता जा रहा है। आप बोलो कि आप जितना ड्रिंक करोगे उतने कमजोर हो जाओगे, तो कोई मानेगा? वो ड्रंकर तो मानेगा नहीं, इसकी वजह से ही तो मैं जी रहा हूं। हमारी भी हालत यही है, हम भी कहते हैं दवाइयों की वजह से ही तो जी रहे हैं हम। नहीं 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 नहीं, ये गलत रास्ता चुन लिया हमने। नहीं, सॉरी हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्वामी जी, मैं दवाइयां नहीं खाती, बहुत दर्द बर्दाश्त करती हूँ, मैं दर्द की दवाई नहीं खाती। इट्स ओनली जब 11, 12, 1 बजे तक नींद नहीं, तो फिर मैं जितनी डॉक्टर ने कहा उससे भी 1/4 स्लीपिंग पिल लेती हूँ, तो फिर मैं नींद। वो ठीक है, मगर आप खा तो दवाई ही रहे। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये, हम कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं चाहते कि हम सपोर्ट पे जिए, हर एक यही चाहता है कि बिना सपोर्ट के जिए। इनफैक्ट आपका लाइफ का पहला गोल ही यही होना चाहिए कि टिल यू लिव विदाउट सपोर्ट। यस, है ना? तो अब इसकी पहली बात तो इसकी जैविक खेती करनी पड़ेगी, ये हमको मानना पड़ेगा जी, कि भाई ये दवाइयों से ना हमने इसकी फर्टिलिटी, इस शरीर का सारा सिस्टम खराब कर दिया, तो हमें दवाइयां छोड़नी है। मगर हम भी तो दवाइयों के बेवड़े हैं, दवाई छोड़ेंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी।
या ये कह लीजिए कि हमारी हालत खराब हो जाएगी तो हमें दवाई लेना ही पड़ेगी। तो दोनों एक ही चीज है। क्या करना है, अभी क्या करना है, इसकी ट्यूनिंग वापस लेके आना। मैंने बताया 3 चीज स्टैब्लिश करना है आपको अपने शरीर में, स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम। ये 3 चीज आप स्टैब्लिश करेंगे तो आप देखेंगे आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो आपकी बॉडी अलाइन हो जाएगी फिजिकल लेवल से। अगर मैं और लेवल तक जाऊं, स्ट्रेंथ की वजह से बैलेंस होता है, और स्ट्रेंथ और बैलेंस होगा तभी आपको जीने का मजा आएगा। रिदम होगा, रिदम की वजह से स्लीप आता है, आप छोड़ पाते हैं। नींद का मतलब क्या होता है कि आप चीजों को छोड़ सकते हैं। जब आप अपने शरीर को छोड़ते हैं, अपने माइंड को छोड़ते हैं, तब नींद आती है। आप छोड़ ही नहीं पाएंगे तो नींद कैसे आएगी? छोड़ने के लिए आपकी सांस का रिदम सही होना चाहिए। तो मैं आप सभी को एक सिंपल सी बताता हूं। फंडामेंटली 5 डिजीज होती है, 5 बीमारियां होती है। बीमारी 5 ही है, उससे जो जो प्रॉब्लम आ रही है ना, आप उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। फंडामेंटली देयर आर 5 डिजीज। पहला डिजीज क्या है? इसे कहते हैं काम। इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव, अगर आप अपने लिए ही जी रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। दिस इज कॉल्ड एज काम। इसका इलाज क्या है? इसे कहते हैं निष्काम। आप जीवन में अपने आप को जिंदा रखने के लिए करिए, कुछ अपने सर्वाइवल के लिए करिए, मगर आप अपने अलावा भी कुछ करिए। इसे कहते हैं निष्काम। काम बीमारी है और निष्काम इलाज है। भारत देश में हम कहते हैं सेवा करो, सेवा करो, कहीं जाओ सेवा करो, गुरुद्वारे जाओ सेवा करो, मंदिर में भंडारा लगाए सेवा करो, कोई योगी आए सेवा करो, परिवार की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो। ये सेवा का कल्चर है। सेवा निष्काम चीज को बना के रखती है। जब आप फेस्टिवल मूड में होते हैं तो निष्काम भाव पैदा होता है। इसीलिए हमारे देश में 365 फेस्टिवल हुआ करते थे। तो काम, निष्काम। दूसरा, अगर केवल अपने लिए जिएंगे, इफ यू जस्ट लिव फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सर्वाइवल, तो आप जो चाहेंगे नहीं होगा तो गुस्सा आएगा। होता है ना, सभी को होता है। आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है तो गुस्सा आता है, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग वट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप जो चाहते हैं वही चाहिए, वो नहीं आए तो आप परेशान हो रहे हैं। जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एलर्जी होगी कि नहीं होगी? एलर्जी का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इसे कहते हैं क्रोध। और क्रोध का इलाज क्या है? बोध। बोध अगर आप अपने जीवन में रखें तो बुद्ध तक पहुंच जाएंगे उससे। सो बोध का मतलब होता है चीजों को देख पाना और उसको एक्सेप्ट कर पाना। बोध का मतलब होता है ये तो इस वजह से हुआ तो ठीक है। अगर आप चीजों को देख पाते हैं तो एक्सेप्ट कर पाते हैं। किसी ने कुछ बोला, आप गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन जब वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि इसलिए बोला, मैंने ये देखा था, ये सोचा था, तो आप शांत हो जाते। वो बोध है। तो क्रोध का इलाज क्या है? बोध। चीजों को आप देख पाए, तो आप एक तरीके से कर पाए, रिदम में कर पाए। तीसरी चीज भय। अगर क्रोध, कौन इंसान क्रोधी होता है? जिसको डर लगता है। गुस्सा किसको आता है? जिसको डर लगता है। जिसको डर नहीं लगेगा उसको गुस्सा नहीं आएगा, मतलब ही नहीं बनता। तो वो क्रोध जिसको होगा उसको भय के कारण क्रोध होता है। क्योंकि मैं जो चाहता हूं नहीं हुआ तो, इफ व्हाट आई वांट डजंट हैपन देन व्हाट? तो मेरी पर्सनालिटी पे आंच आ गई ना, मेरा जीवन कैसे चलेगा? फिर जो मैं सोच रहा हूं वो कैसे चलेगा? तो क्रोध जो है भय की वजह से है। और भय वाले इंसान को, डरे हुए इंसान की सांस देखो आप, उथली सांस होगी, रिदम में नहीं होगा। तो भय का इलाज क्या है? लय का मतलब होता है रिदम। चीजों को एक तरीके से करने की कोशिश करें, जिसे हम कहते हैं ना पर्सनालिटी और दिनचर्या, ऋतुचर्या, कैसे दिन को गुजारना है, कैसे एक ऋतु में कैसे काम करना है। तो लाइफस्टाइल जो होता है ना, वो रिदम उसमें डेवलप करना ही लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग होती है। चौथी चीज पे आ जाइए। चौथी चीज, जैसे मैंने बताया, भय में आपकी सांस रिदम में नहीं होती है।
ठीक है ना, इसे कहते हैं प्रश्वास। प्रश्वास, आपकी सांस रिदम में नहीं है, और इसी से बहुत सारी अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो प्रश्वास का इलाज क्या है? विश्वास। प्रश्वास का इलाज क्या है? विश्वास। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको यह भी नहीं मालूम कि अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि आप जिंदा रहेंगे, वो तो है ही, पर आप उस तरफ देख नहीं रहे। तो प्रश्वास का इलाज है विश्वास। और जब भी सांसें रिदम में होती हैं, तब जाके आप छोड़ पाते हैं किसी चीज को, अपने शरीर को, मन को छोड़ पाते हैं। इसी को कहते हैं निद्रा। निद्रा छोटी सी मौत है, निद्रा छोटी सी मृत्यु है। एवरी डे वी डाई टू बॉर्न अगेन नेक्स्ट डे। निद्रा छोटी मृत्यु है, मृत्यु का भय से निद्रा नहीं आती। हमें मालूम भी नहीं है कि हमें मृत्यु का भय तो है नहीं, लेकिन फंडामेंटली वो मृत्यु का भय ही है। अगर आपकी सांस रिदम में नहीं रहेगी, लय में नहीं, तो मृत्यु का भय हमेशा सताएगा, और उसकी वजह से नींद नहीं आती। नींद भी एक मृत्यु है। मृत्यु को आगोश में गले लगाना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप देखें तो 1000 साल पहले पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में लिंग होते थे, लिंग उपासना होती थी। और लिंग कौन है? मृत्यु ही तो है, मृत्यु के देवता हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, अभी तो केवल भारत में ही होता है, वरना तो पूरी दुनिया में होता। हमारी भारतीय संस्कृति में मृत्यु को सबसे पहले आदर दिया जाता है। तो इसीलिए नींद क्या है? एक छोटी सी मृत्यु। वो कब आप करेंगे? जब आप पूरे तरीके से संतुष्ट हैं, जब आप पूरे तरीके से शांत हैं, जब आप पूरे तरीके से विश्वास है आपको जीवन पे, उस समय नींद अच्छे से आ पाएगी। तो ये 5 डिजीज हैं और 5 उसके इलाज बताए मैंने। ये फंडामेंटल रूप से अगर इसको अपने जीवन में अपनाया जाए तो किसी और तरीके की बीमारी नहीं होगी। लेकिन अभी क्या करें? अभी कैसे करें? अभी तो प्रॉब्लम आ गई, तो वापस से रिदम को डेवलप करें। स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम वापस पाना होगा, तभी नींद आएगी। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूं जो हमारे प्रोग्राम में आए और नींद की बहुत सारी गोलियां खाते थे और आज खत्म हो गए। गोलियां खत्म हो गई, बिना गोलियों के घोड़े बेच के सो रहे। वो ऐसा बोलते हैं, कहते हैं पहले हम सो नहीं पाते थे, आज घोड़े बेच के सो रहे हैं। तो आप ये करोगे तो होगा ही। समय कितना लगेगा वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी गाड़ी कितनी तेज चल रही है बीमारी की। आपकी बीमारी की गाड़ी है ना, उसने स्पीड पकड़ ली है। उसकी स्पीड अगर 120 पहुंच गई तो रुकने में समय लगेगा। अगर अभी 30-40 की स्पीड है तो जल्दी पहुंच जाएगी। हम रिवर्स कर रहे हैं चीजों को, मगर रिवर्स भी करने में टाइम लगता है। तो किसी को जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो 1 महीने में बहुत फायदा हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते ही बहुत फायदा हो जाएगा, सीखते सीखते ही बहुत फायदा हो जाएगा। 1 महीने में बहुत सारा फायदा आ जाएगा। कुछ लोगों को 3 महीना लग सकता है, कुछ लोगों को 6 महीना लग सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि 1 साल में भी अगर आप पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं, 3 साल में भी हो जाते हैं, तो इससे अच्छी डील कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जो भी करेंगे नुकसान होता है। यही एक तरीका है जिससे आप अपने शरीर की इंटीग्रिटी को, स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम को वापस लेके आएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए। अच्छा, रात में आप थोड़ा ना घी नाक में 2 बूंद डाल लें। मैं बादाम रोगन डालती हूँ। हाँ, बादाम रोगन ठीक है। अब गाय जो घी ले रहे हैं ना, अगर A2 घी लें तो और भी अच्छा है। जी A2 ही लिया है मैंने, तो A2 ही ले रही हूँ। बादाम रोगन आप डालते हैं ना, तो कभी बादाम रोगन डालें, कभी घी भी डाल लें। वो A2 घी डालेंगे ना, घी का और भी बहुत अच्छा फायदा होता है। बादाम रोगन में क्या है कि बादाम कई बार ना कड़वे होते हैं, कुछ बादाम जी, तो जब बल्क में बनाया जाता है ना, तो कड़वे बादाम भी पिसते हैं जी, तो वो इरिटेंट भी होते हैं। कड़वा होगा ना तो इरिटेंट होगा, मगर A2 घी में कुछ इरिटेंट नहीं होता। उसको डालेंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। आप डाल के सुबह तो A2 ही अनु तेल डालते हैं,
अनु तेल। हाँ, अणु तेल डाल सकते हैं, मगर वो क्या है कि वही मैंने कहा, जब बल्क में मैन्युफैक्चर होता है ना, हमें नहीं पता कि वो कैसे बनता, क्योंकि जड़ी बूटियों को तोड़ने का एक विधान है, एक नक्षत्र में ही तोड़ी जाती हैं जड़ी बूटियां, तभी वो काम करते हैं। आप भी है ना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और टाइम पे नहीं होते। इसी तरीके से जड़ी बूटियां भी हैं, वो भी जीवंत हैं, और उनका एक समय और एक काल होता है। पर अभी क्योंकि बल्क में वो नहीं देखा जा सकता, और आजकल सभी कुछ एलोपैथी का ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो बल्क बना रहे हैं ना, वो समझने की भी कोशिश एलोपैथी की तरीके से ही करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, ये फूड में ये आपके काम नहीं आता कुछ भी, लेकिन हमें यही देखते हैं। तो थोड़ा देखने का भी तरीका बदल गया हमारा, इसको वापस लाने में थोड़ा समय लगेगा, मगर कुछ नेचुरल चीजें हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो करें। स्वामी जी, मुझे पेट वगैरह में बहुत गर्मी महसूस होती है। मैंने देखा जब कभी मेरे नेचुरोपैथ ने बताया था, मैंने बहुत थेरेपीज नेचुरोपैथी वगैरह की है, कि पेट में थोड़ा बर्फ वाला तांबे का लोटा लगा लो नाभि पे, तो मुझे नींद आ जाती थी। तो क्या करूं मैं? या अनुलोम विलोम? हाँ, वो धरण की वजह से, गार्हपत्य अग्नि के बिगड़ने की वजह से होती है। देखिए, इसमें है ही, इसमें जो प्रोग्राम में है वो आपका नाभि चक्र को ठीक करने का तरीका इसके अंदर है ही, तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनिशियली आप थोड़ा सपोर्ट ले लें, जैसे हमने बताया, अगर आप अरिष्ट ले लें तो आप देखेंगे सडनली ये चीजें मेलो डाउन हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और आप प्रैक्टिस ठीक से कर पाएंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ भी बहुत इवॉल्व हो जाएगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जी। सूरज प्रसाद सर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। गुरुजी प्रणाम, मेरे को दो क्वेश्चन पूछना है गुरुजी। 7th और 8th क्रिया चेयर पे बैठ के कैसा करना? क्या चीज? 7th और 8th क्रिया चेयर पे कैसा बैठ के करना? चेयर पे कैसे बैठ के करना? क्रिया के बारे में ना आप मेंटर के साथ में बात कीजिए। अभी जो प्रैक्टिसेस के बारे में ना, आपको मेंटर्स, आपको रचना जी, इनको कोई फोन करके ना इनको बता दें, समझा दें। हाँ, श्योर। और गुरुजी, ये जो हम लास्ट वीक जो क्रिया किए थे कुंभक, अभी उसके साथ ही कल सुबह प्रैक्टिस करना है? हाँ, बिल्कुल ये करना है। वो सीक्वेंस आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ओवर द क्रियास। ओके, क्योंकि गुरुजी को भी फिर जाना है, इसलिए। हेलो स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, हम जब क्रिया करते हैं तो सीधे बैठने से कमर में दर्द होने लगता है नीचे। बहुत कमर में दर्द होता है, थोड़ा आप कमर पे बेल्ट बांध के देखिए, ट्राई कीजिए। वो तो बांधते हैं, कमर बंद बांधते हैं, कपड़ा बांध लेते हैं, लेकिन तभी दर्द, थोड़ी देर तो बैठते हैं सीधे, फिर उसके बाद दर्द होने लगता है। हाँ, तो अभी क्या करेंगे कि जितना देर आपको बैठे जाता है ना, उतना देर बैठ के कर लीजिए, फिर आप आराम कर लीजिए। बीच बीच में ना आप बैक रेस्ट ले लिया करो। अच्छा, एक राउंड किया, पीछे बैक रेस्ट ले लिया, फिर एक राउंड किया, फिर बैक रेस्ट ले लिया। इस तरीके से शुरुआत में आप करेंगे तो धीरे धीरे कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि आप ज्यादा देर बैठ पाएंगे, है ना। वो धीरे धीरे करके ही बढ़ेगा ये। तो आप बीच में रेस्ट आराम से लेते रहें। इसके लिए रेस्ट लेना कोई निषेध नहीं है, हमने नहीं बोला कि आप बीच में रेस्ट नहीं लेंगे, बिल्कुल लेके करें। ठीक है। चंद्रकला मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते गुरुजी। Namaste. When you were teaching the steps and all, during the Nale, this thing, the thigh, inner thigh, I felt a pull, and it was there for a long time. Yes. So for because of the disalignment that has happened in the body through the years, what happens? The nerve they get dearranged, and when you push them, it again arranges back, but it creates a little difficulty, or it can create pain. How you go through it is, as I have explained, you don't push too hard. Okay. Don't push too hard. Just a gentle push towards the knee. Okay. The inner thigh, just a gentle push. Because suddenly if you want to, if somebody is like walks one foot down more, the other foot a little up, and suddenly you try to pull that person straight, it will pain.
For that person, the arrangement, the disturbed arrangement is more convenient. So if we do not have to actually reduce the convenience of the body, but slowly we can push it towards alignment. That is why I have said, do it gently. Everything, even Kumbhak, when you hold, do not hold for long. Slowly you'll see your capacity will automatically increase. It has to increase, it will automatically increase. So do it gently, and that's how we'll take it up. We'll take the body towards health. And one more question, Swamiji, that ghee, whatever we are putting in this thing, should we melt it or directly we should apply it? No. You melt it and then take 1.5 tablespoon. Oh, that is intake, but putting on the nostrils? Putting in the nostrils also you will have to melt it, but one must ensure it is not too hot. Okay. It should be very, very gentle warm. So that is why you melt it, and then using your finger or a dropper, you can put 2-3 drops in every nostril and then just suck it up. Okay. I'm also using badam oil. That okay. Suresh sir, you can ask your question, please. Yeah. Thank you. Namaskar, sir. Namaskar. After doing all these kriyas, I have feeling radiant pain in this side and this side of the body. Is it? Yes, it is natural. If you use your body, whatever factor which are weak in the body, there it will pain. But that is why we are saying do it gently. If there is a pain, you can put a wet towel in that region for 30 minutes. It's becoming more actually. That's it's become more day by day. Yes, because if it is increasing, that means some nerve has got pulled. While doing the practice, some nerve has got pulled. So for that, what you do not move that region. If you are doing Hatha Vinyasa, drop Hatha Vinyasa for some time. Do your Asanyasa and drop your Hatha Vinyasa. Any kind of movement of that region, you must restrict at this point of time. The nerve will get back into its original position and the pain will go up. But the more movement you do around that region, the pain will keep on happening and it will grow. No, this is because of this or some acidity or acid reflux will be there because I have some gas. See, it can be both. It can be both. Now, it can be a nerve pull and it can be inflammation which is aggravating the pain. So, what I am saying is you can put a wet towel in that region, whichever region is paining, for 30 minutes and you see slowly the inflammation will come down. And if there is a digestive issue, you must ensure that you do not have constipation. One thing, you do not have constipation in the body, and try to eat light, especially whatever stuff has more water content. We will share a video regarding food. So stuff which has more water content reduces the inflammation in the body. So in that terms, fruits usually reduces inflammation, or when you cook something in a lot of water, those kind of stuff usually reduces the inflammation in the body. So we'll share a food video with you. So ensure that you regulate your food according to the formula that we have given there. Apart from that, you can always take some kind of a support to reduce the inflammation, internal inflammation, like Arist, and oil to reduce the external pain or inflammation if it is there. So use any kind of pain oil on the body and some Arist to actually help the digestive process, but always ensure that there is no constipation. And after that, you'll have to see that the movement has to be very gentle. And if there is an increasing pain in any region, stop the movement of that region. Stop Hatha Vinyasa, just do Anganyasa and Kumbhak therapy. When the pain subsides, then you can again start moving that region. I have this neck hump and upper back shoulder spondylosis was there since 7 years actually.
The spondylosis, it aggravates usually due to inflammation. So you can put a wet cloth in the neck region for 30 minutes and it will reduce the inflammation. But reducing internal inflammation is again something that has to be taken care of. Constipation and some kind of arrest, you can use an arrest for internal inflammation. Snehal ma'am has a Thanks. question to ask. Please ask your question, Snehal ma'am. We'll take last question because I have to shift to another webinar. Okay, Nitin sir, you can ask your question since Snehal ma'am is not there probably. Nitin sir. Okay, Kapil, Can I ask a question? Yes, I'm ready. Swamiji. one by one, please. Reversing Please say your name. So, Snehal madam. Hello. how do Okay, I integrate Nitin that sir, practice please with hold this? on. Snehal ma'am will ask a question. Hello. Yeah, madam, I am following the Krishna and Lakshmi and all that first day class exercises as well as second day, and today's also I understood little, but technical words of these all the exercises we cannot remember. So will we be getting the theory in writing on the video also? So Ma'am, I just explained when I was introducing, everything will be available to you. If this is your third class, so Yeah. 2 classes you've already got it. So ma'am, again you Yeah. will get it in the third class. Yeah, I will one note thing- it down. Yeah. Yes, Swamiji. you don't have to remember the practices, you have to remember how to do it. That's it. Yeah, and another question, may I ask you, sir? I am doing this practice of yours. Sciatica problem was to my both of the legs, and now within it little 2 times a day practice, I am feeling nearly 20 to 25% better. Yes. So what is your question? And now I want another question that I have a lot of mouth ulcers. That is due to internal inflammation, liver weakness. That is Yeah. digestion and liver weakness. Yeah. So that said, you can take a little support at this point of time. Huh. Take a little support. We have practices in the module which will take care of this issue. But at this point of time, if you take a little arrest, that will help you in reducing the ulcers. And people who come from other diabetes program or other program, what you have to do is that you can continue the evening practice. Right. Drop the morning practice, and at this point of time, you can do your customized practice, which is through the day. But in the morning, you do Ashtanga Chikitsa. In the evening, the evening practice of that module. And another last question. Thank you, sir. Sir, can I drink before going to bed the warm water, glass of water? Of course, you can have you can anytime you can have a little warm water. No, I'm asking because I have a lot of heat in my body and getting mouth ulcers. No. See, what we will also share a little detox mechanism, or there is something called as Haritiki Churna. You have to take that Haritiki Churna before sleeping. You can you'll have to soak that churna in a glass of water. You can soak it in warm water, but you'll have to leave it for 2 hours at least. Okay. And Arista means what should I take as Arista? We'll share a video and where you'll also get the information of where to buy it from. Okay, yes, sir. Thank you. Swamiji, can we? Okay. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Thank you so much. My question. आपको बहुत शुभकामनाएं आपके लिए ना. You can ask question in the group. It will be answered by me. Every Monday we are taking up questions. So you can always put a question in the group. You will get immediate answer. Otherwise, every Monday we'll pick up few questions and answer. If you're too late, Swamiji, if you're too late, then it's fine. Otherwise, I had one question. Okay. So we have come towards the end of this session. I hope everybody's enjoyed the session.
और Yeah. क्रिया रिलेटेड आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, प्लीज अंडरस्टैंड कि मेंटर्स हैं आपको गाइड करने के लिए. So all your questions will be answered in the mentors session. In the meanwhile, आपको PDF मिलेगा WhatsApp group में, which will be highlighted. Again, I'm repeating, आपको highlighted portion करना है. Okay, thank you. Okay? तो आपका और जो भी क्वेश्चन है आप लोग प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे. वी विल फॉरवर्ड इट टू स्वामी जी. अदरवाइज नेक्स्ट मंडे अगेन वील हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन. So because it was more than an hour and he had to move on, that's the reason we had to close it. Okay. So should we close the session, or is there any other question, general question you would like to ask? Then I can take it up. I had a question Thank for you. Swamiji, but I think you asked me to hold on because somebody else was there. One question, so I think I Yes, put up in this. yes, Nitin sir, because Snehal ma'am was not coming, so I thought you can take your question. But Okay. she had सुबह joined कितने us. ये प्रैक्टिस मतलब जैसे हम योगा करते हैं, पहले योगा करते थे, अभी ये प्रैक्टिस वहां पे सुबह कर सकते हैं, मतलब उठने के बाद योगा हाँ, के उठने लिए? के बाद the best time to do is empty stomach early morning. और ठीक है? इवनिंग? इवनिंग में भी देखिए, अभी हम लोग को चलना पड़ता है अपने कामकाज के हिसाब से, तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर किसी के लिए सुबह पॉसिबल नहीं है तो आप जरूर इवनिंग में करें, पर करें, वो जरूरी है कि आप करें. इट्स नॉट दैट कि सुबह नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे उसको. करना आपको है, वो एक ही रास्ता है आपको बीमारी से बाहर निकलने के लिए, जैसा कि स्वामी जी ने समझाया. सुबह जो घी लेना है वो 1.5 चम्मच जो घी गर्म करके मतलब वो डायरेक्ट ले लेना है, मतलब पानी उसके कुछ टाइम बाद पीना है? नहीं, कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ आपको 1.5 चम्मच घी गर्म करना है, डायरेक्ट ले लेना है. और मैंने खुद ने लिया है, आप बिलीव करिए बहुत चेंजेस आप फील करोगे अपने में. लोगों का स्टोन भी निकला है घी खाने से. द अदर डे वन पार्टिसिपेंट सेड कि उनका इतना बड़ा स्टोन था कि वो भी निकल गया घी खाने से. तो आप सोच सकते हो घी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है. हेलो मैम. हेलो रचना मैम. हाँ, टेल मी. हाँ, मैं 1 महीने से 1-2 महीने से भस्त्रिका सवेरे करती हूँ, तो वो शुरू रख सकती हूँ क्या? नहीं, भस्त्रिका नहीं करना है. जिसमें फास्ट एक्सलेशन है वो आपको प्राणायाम नहीं करना है. आपको एक्सलेशन इन कंट्रोल रखना है, मिनिमम एकदम धीरे माइल्ड एक्सलेशन. कपालभाति नहीं करनी है और आपको भस्त्रिका प्राणायाम भी नहीं करना है. ओके. ये सब चीज आपका जो भी प्रॉब्लम है ना उसको और एग्रवेट करेगा, उसको घटाएगा नहीं. ये बात समझिए, एम्पलीफाई करता है. अगर आप कपालभाति कर रहे हो, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो और एम्पलीफाई हो जाएगा. तो आपको एक्सलेशन इन कंट्रोल होनी चाहिए. मैम. रचना मैम. हाँ, रचना मैम. वो जो स्वामी जी ने क्रिया बताई थी कि होल्ड करके और एनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, तो अभी मैंने साथ साथ प्रैक्टिस करके देखा. उसमें जब हम सांस रोकते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, लेकिन रोक कर जब रिलैक्स करते हैं तो सांस भी साथ छूट जाता है, थोड़ा थोड़ा छूटता रहता है. वो देखिए विद प्रैक्टिस होगा. ठीक है ना, धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना. थ्रू आउट द डे आप प्रैक्टिस करो, आप देखोगे 1 हफ्ते में कितना चेंजेस आने लग गया है. क्योंकि सांस रोकना और बंद लगाने में कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, लेकिन फिर जब छोड़ते हैं तो सांस भी थोड़ा छूटता है. हाँ, वो मैम आप इतना घबराइए मत, वो नॉर्मल है. जो आप बोल रहे हो ना, ये 99% लोग तो इनर लॉक ही नहीं लगा सक रहे, तो आप एटलीस्ट वो तो कर पा रहे हो ना. तो घबराइए मत, धीरे धीरे वो हो जाएगा. थैंक यू. रचना मैम. हाँ, रचना मैम. Normally I take 2 to 3 glasses of warm water in the morning, then only I can go to toilet. So after taking the ghee, how much like how long I should leave? And half an hour, ma'am. All this was explained in the introductory session and we will be sharing the videos. So let's not waste time over these questions. वो सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा. और कुछ अगर क्वेश्चन है क्रिया रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. ओके, थैंक यू मैम.
Yes, संजीव जी, आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? Query. I've got one question. Ma'am, Can you hear me, Rachna ma'am? Hello. No, I cannot hear you. संजीव जी, आपका क्वेश्चन है क्या? You've raised your hand. Okay, who else was speaking? You can speak, please. Yes, Rachna ma'am. I want to know. Ma'am, I wanted to ask, but it's not yet 1 clear. minute, actually, संजीव सर, आपसे आवाज नहीं आ रही थी, तो मैम बोल रही है. एक बार मैम खत्म कर ले, फिर आप बोलिए. Yes मैम, लास्ट टाइम हमें जो क्रियाएं कराई गई हैं और आज जो कराई गई हैं, इनका सीक्वेंस क्या है? पहले हमें पुरानी वाली करनी है, फिर ये वाली करनी है? मैम, अगेन आई एम सेइंग, आप लोग ना थोड़ा सा कामनेस रखिए, सब कुछ आपको मिलेगा. आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, पूजा, आपकी मेंटर पूजा मैम ने ऑलरेडी सीक्वेंस भेज दिया है आपको. ओके. आप लोग सेशन खत्म करेंगे ना, हम लोग चाहते हैं कि उसके पहले ही आपको सब पहुंच जाए, ताकि आप लोग टेंशन नहीं ले. बस टेंशन हमें दीजिए, आप लोग ना ले. Okay. Rachna ma'am, if I don't have any questions, can I leave? Yes. People who want to leave can leave. Just 1 or 2 minutes. I will be taking the questions, and then we will end the session. Don't worry. Rachna ma'am, Thank you so much. Thank you so much. Good day. Please keep the practices on. Thank you. Rachna ma'am, this is Nitin here. I wanted to ask question about my health condition. So I think this is not the this thing, right? You wanted to ask about the kriyas, no? No, you So can ask whatever is possible. So that is the reason by I me. wanted I to will talk to Swamiji. Otherwise, But- I will redirect it to Swamiji, or else another option is we can take it up on next Monday. Okay, I'll send it to you on the WhatsApp then. Okay, send it in the group, no problem. ठीक है, no problem. Okay. Because I'm yes, just having, I'm just, I have a spondylosis issue, but my major issue right now is a digestive issue where I'm having a chronic constipation, and it doesn't go to 3 दिन तक I have get constipated. Then I drink water, सब कुछ होता है, मैं रोज पानी पी रहा हूँ सुबह में उठ के 4 ग्लास with lemon and all, but it doesn't affect, it doesn't help me. प्लस मैं अभी नितिन आयुर्वेदिक सर, हम एक बात बोले, आपने स्वामी जी को ध्यान से सुना था? हाँ, तो आपका क्वेश्चन तो उधर आंसर हो ही गया है. उन्होंने क्या बोला? 3 अलाइनमेंट पॉइंट्स होती है, एक नाभि होता है, एक नले होता है और एक कौड़ी होता है. और वो तीनों चीज पे ही हम लोग अष्टांग चिकित्सा में काम कर रहे हैं. तो अब आप बताइए, मेरी बात सुनिए, अगर आप उसको सही से करेंगे तो क्या आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हाँ या ना? होना चाहिए. 100% होगा, होना चाहिए नहीं, होगा. Okay. तो आप प्लीज हमारे साथ रहें, हंसते रहें, क्रियाएं करते रहें, और आपकी जर्नी बहुत स्मूथ होगी एंड यू विल बी आउट ऑफ इट. कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है ना, आज 99% लोगों को है. आइदर वो दवाई खा रहे इसलिए, या फिर जो खाना हम लोग खा रहे वो सबको पता है कि कितना प्योर है. ठीक है ना? तो एकदम घबराइए नहीं, बस आपकी क्रियाएं अच्छे से करिए, प्रैक्टिस सेशन में आइए पूरे लगन से, एंड सेलिब्रेट एंड डोंट डू इट कि बस मुझे खत्म करना है किसी तरह. वी आर नॉट ट्राइंग टू टच द फिनिशिंग लाइन, वी वांट टू डू इट फॉर आवर ओन हेल्थ. और आप लोग सब कमिटेड हैं अपने हेल्थ से, इसीलिए आप लोग ने ज्वाइन किया है. करेक्ट. प्लीज अंडरस्टैंड, आपका कमिटमेंट इम्पोर्टेंट है. हम लोग जितना भी करेंगे, पर आप लोग को करना खुद ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते. Absolutely right. Correct. रबर दे आपको. Okay, one last question. Rachna ma'am. I have my question, ma'am. Sanjeev sir, I will only be listening to Sanjeev sir. He's been waiting for a very long time. Yes, sir. Sir, I cannot hear you at all. Sir, आपका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए प्लीज. If there's any question related to क्रिया कि कब मिलेगा, कैसे करना है, याद नहीं है, ये सब क्वेश्चन का आंसर हो चुका है. So I will not entertain those questions. अगर कुछ और प्रॉब्लम्स है तो आप yes पूजा मैम, you can tell me your questions since Sanjeev Parekh. Ma'am, when we have practices of thyroid session, please unmute yourself. There was a lot of disturbance, so I have muted everybody.
Ma'am, when we have thyroid practices in the morning, our mentors are giving us. That time, what shall I do? I should join them on. So which days are those? They declare afterwards on the WhatsApp group like. No, but the thing is, ma'am, आप वो तो ज्वाइन कर ही सकते हो, वो देख लो, बस आपको सुबह अष्टांग चिकित्सा प्रैक्टिस करना है और शाम को अपना थायराइड प्रैक्टिस करनी है. But thyroid practice we have two. One is for morning and one is for evening. So you have to skip the morning practice now. So in the evening, I am doing morning and evening both together. No, just the evening practice you continue. Morning practices को अभी skip कर दीजिए. Okay. जब आप अष्टांग चिकित्सा कर रहे हो, क्योंकि अष्टांग चिकित्सा आपको सुबह करना है, शाम को थायराइड का प्रैक्टिस. ओके, तो मॉर्निंग स्किप कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं? कोई भी इश्यू नहीं है मैम, हम लोग हैं ना आपके लिए, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? Because we have to answer our mentors also. Those people said like, you ask Swamiji what he is recommending you, that you do. So you can tell them that Rachna ma'am has said that if there's any problem, they can connect with me. Okay, fine. Okay, you don't worry, ma'am. That's what we want. Aap panic mat ho, please. Rachna madam. Yes. Okay. Can you hear me now? Yes, I can hear you now. I have a Parkinson's problem. Yes. My hand, right hand keeps shaking. Will I get benefit in this program? Sir, do you think you will get benefit in this program before you decided to join? No, I had asked, but I did not get an answer on the group. What? Whether I'll get a benefit or not. तो आपने join कैसे किया? वो मैंने कर दिया, अभी पूछ रहा हूँ. तो कुछ तो आपने सोच के किया होगा ना? कुछ आपके मन ने तो बोला होगा, हाँ ठीक फायदा होगा यहाँ पर, कुछ तो लगा होगा आपको. लगा, बट अभी आपसे जानना चाहता हूँ मैं. तो आपको जो लगा वही सही है, बस हम यही बोलना चाहते हैं. जिस थॉट से आपने ज्वाइन किया है, कुछ पॉजिटिविटी से आप ये सोच लीजिए फायदा तो 100% होगा अगर आप डेडिकेटेडली करो. एक हमारे पार्टिसिपेंट्स में आई डोंट नो विच बैच, वो उनको भी पार्किंसंस था और वो माने पैर फोल्ड नहीं कर, बहुत बुरा हालत था, वो पैर फोल्ड करने लग गई और धीरे धीरे उनका ट्रेमर्स भी कम हो रहा है. तो आप सोचिए अगर आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको फायदा क्यों नहीं होगा? 100% होगा. ये माइंड में नेगेटिव थॉट आपको लाना ही नहीं है. ओके? Yes. And any other question? Ma'am, I have a general query, ma'am. Yes, what is the query? Ma'am, my mother is from South India. She is from Bangalore. Okay. Do you have any option for interpretation? She doesn't understand English or Hindi. So what language she understands? Kannada. Kannada. Oh my God, we don't have any of the mentors in Kannada. Shalini, in which way we can help him? Any suggestions? Madam, either in Telugu? Of the same thing. If any of the neighbors or any friends who can join and help her. Harsha, sir? Ma'am, at present, nobody is nearby. Okay, so what we can do is we will write in the Shalini, we can ask Sundar sir if he can help in Kannada. Okay. Okay. So you connect to Shalini ma'am. She'll try to help you out. We cannot assure, but we will definitely try to help you out. Okay. Sure. Okay. So I'll come to the end of this session. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Namaste. Good night. And please take care and do the practices. That's the only request we have to you. Good night. Take care. God bless us all. Good night. Bye-bye. Take care.